They are also interested in offshore patrol vessels, OPVs. Brazil has Scorpene submarines. They are interested in partnering with us in maintaining those submarines. They also seem to be interested in the Akash air defense system and in coastal surveillance systems, Garuda artillery guns. नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। ब्राजील में भारत की बड़ी डिफेंस डील देखने के लिए मिलेगी। भारत ने हथियार खरीदेगा ब्राजील, पनडुब्बी से लेकर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तक का आप कह सकते हो सकता है समझौता हस्ताक्षर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का अब दिखने लगा है जलवा। बता दें आपको कि 8 दिनों में 5 देशों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बड़े डिफेंस डील से चीन को लगी है बड़ी मिर्ची। तो क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। तो इस तरीके से अब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का लोहा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी माना जा रहा है, विस्तार से समझिए। तो भारत के स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपना लोहा मनवा लिया है। ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर इस प्रणाली में गहरी दिलचस्पी दिखाई है और इसके अधिग्रहण व लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भारत के साथ बातचीत शुरू कर दी है। भारत के आकाश सिस्टम को चीनी स्काई ड्रैगन पर तरजीह देने के बाद ब्राजील द्वारा यह कदम उठाया गया है, जो भारत की रक्षा निर्यात नीति और मेक इन इंडिया पहल के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। विदेश मंत्रालय के सचिव पी कुमारन ने इस बात की पुष्टि की है कि ब्राजील की दिलचस्पी न केवल खरीद में है, बल्कि वह भारत के साथ मिलकर इस सिस्टम का उत्पादन भी करना चाहता है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। I think Ms. Huma's question about defense and nuclear cooperation with Brazil. Yes, there is going to be discussions on defense cooperation and enhancing it with Brazil. We are looking at avenues for joint research, technology sharing and training exchanges. We are still talking about what kind of cooperation is possible, what kind of defense platforms we can sell to Brazil, but there is still not much progress made. But broadly, we have a few areas that seem to be of interest to the Brazilian side. They are interested in secure communication systems on the battlefield. They are also interested in offshore patrol vessels, OPVs. Brazil has Scorpene submarines. They are interested in partnering with us in maintaining those submarines. They also seem to be interested in the Akash air defense system and in coastal surveillance systems, Garuda artillery guns and so on. They are also interested in manufacturing defense industry joint ventures with us. Joint R&D, of course, and co-development of systems. Somebody had mentioned the Embraer platform. Yes, we do use the Embraer platform to develop reconnaissance systems, etc. on top of that. So there is a lot of potential for us to work with Brazil, given their strength in the Embraer and in the aircraft industry in general. On nuclear cooperation, yes, there is interest. Both countries want to move away towards greener sources of energy, and therefore there is scope for partnership there. We also work together on biofuels, but on the specific issue of SMR, small modular reactors, I don't have anything. Both of us are looking to partner with other countries, in fact, to try and get SMR technology. So hopefully we'll have something to share with you by the time the visit ends. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि ब्राजील की दिलचस्पी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में है और साथ ही साथ पनडुब्बी यानी सबमरीन में भी वो डिफेंस को लेकर जो है वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जुलाई 2025 में पीएम मोदी के ब्राजील दौरे के दौरान इस पर उच्च स्तरीय चर्चा होगी। पीएम मोदी 5 में से 8 जुलाई तक रियो डी जेनेरियो में होने जा रहे 70वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ साथ ब्राजील की द्विपक्षीय यात्रा भी जो है करेंगे। इससे पहले ब्राजील की सैन्य उच्च अधिकारियों की टीम ने भारत में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का लाइव प्रदर्शन देखा था और इसके बाद इसे चीनी विकल्प पर तरजीह दी गई है। ये पहली बार नहीं है जब भारत की रक्षा तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली हो। इससे पहले आकाश सिस्टम की सफलतापूर्वक आर्मेनिया को एक्सपोर्ट के बाद भारत का आत्मविश्वास और बढ़ा है। इसके अलावा भारत और ब्राजील के बीच कई रक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा चल रही है। इसमें प्रमुख रूप से जो शामिल है वो ये है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की साझा मेंटेनेंस, जिसमें दोनों देशों की नौसेना को लागत में बचत और परिचालित मजबूती मिलेगी। भारत के तेजस लड़ाकू विमान में
ब्राजील की रुचि और भारत द्वारा ब्राजील के C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाने की संभावना, मिसाइल गाइडेड मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के संयुक्त विकास की योजना, नेवल प्लेटफॉर्म और स्मार्ट आर्म्स के क्षेत्र में भारतीय और ब्राजीली कंपनी का तकनीकी और औद्योगिक तालमेल, औद्योगिक सहयोग भी हो रहा मजबूत। बता दें आपको, ब्राजील के से पहले से सक्रिय भारत कंपनी जैसे MKU और SMPP बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य सुरक्षा उपकरण सप्लाई कर रही है। वहीं ब्राजील को दो बड़ी कंपनियां टॉरस आर्म्स और CBC अब भारत में अपना निवेश और हथियारों का निर्माण बढ़ा रही है, यानी ये कंपनियां भारत में ज्यादा फैक्ट्री लगाएंगी और यहीं पर हथियार भी बनाएंगी। प्रायर ने भारत में खोली है नई सब्सिडरी। तो बता दें आपको कि ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रायर ने भारत में नई यूनिट स्थापित की है। इससे एयर स्पेस में सहयोग की नई संभावनाएं भी खुली है। कूटनीति के साथ टेक्नोलॉजी का तालमेल भी देखने के लिए मिला। भारत और ब्राजील G20 सैटेलाइट मिशन में भी साथ काम कर रहे हैं। इससे जलवायु पर्यावरण की निगरानी पर फोकस रहेगा। दोनों देशों की ये रणनीतिक साझेदारी अब सिर्फ रक्षा उपकरणों तक सीमित नहीं, बल्कि स्पेस और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुकी है। वहीं आपको बता दें कि PM मोदी जो है कल यानी बुधवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो रही हैं। सबसे पहले वो अफ्रीकी देश घाना के दौरे पर जाएंगे। इसके बाद वो त्रिनाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना और ब्राजील होते हुए जो है आपको बता दें कि नाम्बिया का दौरा करेंगे। इस दौरे से पहले एक कुर्सी भी चर्चा में आ गई है। खास बात यह है कि विदेशी सरजमी के संसद में रखी इस कुर्सी पर भारत और भारत के लोगों का जिक्र है। इस संसद में PM मोदी जाएंगे और वहां कुर्सी के समकक्ष अपना भाषण भी देंगे। PM मोदी 8 दिन में विदेशी जो है दौरे के दौरान 5 देशों की यात्रा करेंगे। यात्रा के दूसरे पड़ाव के तहत PM मोदी त्रिनाद और टोबैगो की यात्रा करेंगे। त्रिनाद जो आपको बता दें कि त्रिनाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के न्योते पर PM मोदी इस देश की यात्रा पर जा रहे हैं। वो पहली बार बतौर प्रधानमंत्री इस कैरेबियाई देश आ रहे हैं। साथ ही 1999 के बाद यानी 25 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा भी होगी। यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय में सचिव नीना मल्होत्रा ने बताया है कि त्रिनाद और टोबैगो की संसद में स्पीकर की कुर्सी भारत ने गिफ्ट की थी, जो दोनों देशों के बीच मजबूत लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं को दर्शाता है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटिना ने पिछले साल अपनी यात्रा के दौरान इस कुर्सी का जिक्र किया था। सोशल मीडिया पर इसकी फोटो भी शेयर की थी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से पहले ये कुर्सी फिर से चर्चा में आ गई है। इस कुर्सी भारत की ओर से 9 फरवरी 1968 को त्रिनिदाद और टोबैगो को गिफ्ट रूप में दी गई थी। त्रिनिदाद और टोबैगो 31 अगस्त 1962 को ब्रिटिश शासन की चुंगल से आजाद हुआ था और इसे यादगार बनाने तथा अपनी दोस्ती को ऐतिहासिक बनाए रखने के लिए भारत ने इस देश की संसद को कुर्सी जो है गिफ्ट की थी। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये दौरा काफी अहम होने वाला है और साथ ही साथ ब्राजील के साथ भारत के रिश्ते भी मजबूत होने वाले हैं। डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी डील जो है होने वाली है, जिस पर प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान संभावित हस्ताक्षर जो है किए जाएंगे और इस डील से चीन के अंदर बेहद ज्यादा बौखलाहट है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, बयान आपने सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।